এখন আন্দোলন স্বীকৃতি আমরা বলতে পারি আমরা সমস্ত কিছুকে স্বাগত জানাবো এবং লক্ষ্য করছে যেভাবে কথা দিয়ে সুস্থতা দিয়ে সংসে সেই মঙ্গল ভূমির মধ্য দিয়ে আমরা স্বাগত জানাবো এই পর্বে সমস্ত অতিথিবৃন্দকে এবং অবশ্যই করতালির উষ্ণতা থাকবে এই মুহূর্তে সবার দিক থেকে একটু করতালির উষ্ণতা আসুক। Honorable Governor of West Bengal, State President of the Red Cross Society, cordial welcome Friends Society সেই শিকড়ের ভূমিতে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি তাকে শ্রী জগদীপ ধনকর। আমরা এই বিশেষ মুহূর্তে তাকে স্বাগত জানাচ্ছি, সেই সঙ্গে আরো যারা উপস্থিত হচ্ছেন শ্রীমতী সুদেশ ধনকর, সম্মাননীয় রাজ্যপালের পত্নী, তিনি উপস্থিত হচ্ছেন এই বিশেষ মুহূর্তে শ্রী কমলালাল বনসালী, অনারেবল প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতী, অনারেবল শ্রী ভিএস সরকার আইপিএস রিটায়ার কমান্ডেন্ট জেনারেল অফ পুলিশ বেঙ্গল। একটা বিশেষ মুহূর্ত, সুদীর্ঘ ৩৫ বছরের ফ্রেন্ড সোসাইটির যে কর্মকাণ্ড, যে কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আমরা আজকের দিনের এই মুহূর্তটাকে স্মরণীয় করে রাখার এক ভাবনা নিয়ে রয়েছি। আমরা অতিথিবৃন্দকে হৃদয় থেকে স্বাগত জানাই। All are welcome. Well, after 35 years of service, समाज सेवी श्री प्रदीप जोशी जी और हम लोग के बीच में आए हुए हैं राष्ट्रीय सेवा भारती की नागालैंड की दायित्व प्राप्त डॉक्टर देव, फ्रेंड्स सोसाइटी इन सोशल सर्विस की तरफ से और फ्रेंड्स सोसाइटी की सभी आदमियों से हम लोग
मातरम वंदे मातरम मातरम सुजला सुफला मल अजय शीतला शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्रयोसना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभनी शुभ्रयोसना पुलकित यामिनी कुसुमित धूमदल शोभनी सुहासिनी सुमधुर वासिनी सुहासिनी सुमधुर वासिनी सुखदान वरदान मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम। আজ এই ৩৫ বছর ধরে যিনি মানুষের সেবায়, মানুষের পাশে, আর্ত মানুষের পাশে, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ঝড় ঝঞ্ঝা তার মধ্যে দিয়ে মানুষের জন্যে যিনি মানব সেবায় করে এসেছেন, তার কর্মযোগ্য সেই বিশিষ্ট আপনাদের এই গ্রামের মানুষ, আপনাদের কাছের মানুষ এবং প্রতিনিয়ত যাকে এই জাতীয় যে কোনো ঝড়ঝঞ্ঝা বা দুর্ভিক্ষ, বন্যার পাশে, মানুষের পাশে পাওয়া যায়,
সেই ফ্রেন্ডস সোসাইটি ইন সোশ্যাল সার্ভিসের কর্ণধার এবং বর্তমানে তিনি ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্রাঞ্চের চেয়ারম্যান। আমি তাকে প্রথম বলবো কিছু আমাদের বলার জন্যে। আমি শ্রী শান্তিরঞ্জন কারারকে মঞ্চে অনুরোধ করব কিছু বলার জন্যে। নমস্তে, গুড মর্নিং অ্যান্ড নমস্কার। আজকের এই আনন্দ ঘন মুহূর্তে আমার শুধু মনে পড়ে কি গাবো আমি, কি শোনাবো আজি আনন্দ ধামে। তো আজকে আমরা এখানে যাদেরকে পেয়েছি, যাদের অনুপ্রেরণায় আজকে আমি এত বড় হয়েছি, সেই মানুষ আমাদের এই গ্রাম, সেই গ্রামের মানুষদের কাছে প্রথমেই আমি প্রণাম জানাই। তারপর আমি প্রণাম জানাই আমার শ্রদ্ধেয় গুরুজি প্রদীপ যোশীজিকে, যিনি আমাকে পথ দেখাচ্ছেন, পথ দেখিয়েছেন আপনাদের সঙ্গে আরও কাছাকাছি থেকে কাজ করতে। আমি অত্যন্ত গর্বিত এবং পুলকিত আমাদের মাননীয় রাজ্যপাল, যিনি এখানে আজ উপস্থিত হয়েছেন ৭৫ বছর স্বাধীনতার পর, যার মতো এক মানুষের পদার্পণ ঘটেছে আমাদের এই গ্রামে এই প্রথমবার। সেই জন্যে গ্রামের পক্ষ থেকে, এলাকার পক্ষ থেকে আমি ওনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি, স্বাগত জানাচ্ছি এবং নমস্কার জানাচ্ছি। উনি যে আমাদের ডাকে আমাদের মতো এই অজপাড়াগার গ্রামে এখানে আসবেন, সেটা আমরা আজ থেকে 10 বছর আগেও কেউ ভাবতে পারিনি। সেটা সম্ভব হয়েছে ওনার এই ডেডিকেশন, এটা সম্ভব হয়েছে ওনার এই করব কিছু এই মনোভাব, এবং আজকের দেশে মানুষের কাছে ওনার গণতান্ত্রিক বার্তা যেটা উনি পৌঁছাতে চাইছেন, যে এখানে সবাই মানুষ, আমরা সবাই ভালোভাবে থাকি, আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারটাকে আমরা পুরোপুরি যেন এক্সারসাইজ করতে পারি। এই যে মানুষ, আমি বলবো লৌহ কঠিন মানুষ, তাকে আমরা আজ রাজ্যপাল হিসেবে পেয়েছি। এটা সত্যিকারেরই পশ্চিমবঙ্গের কাছে একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে। আগামী দিন বলবে আমাদের জগদীপ ধনকরজি কী ধরনের মানুষ শুধু নন, কী ধরনের রাজ্যপাল ছিলেন। তাই ওনাকে সঙ্গে সঙ্গে ওনার স্ত্রী, ওনাকেও আমি স্বাগত জানাই, প্রণাম জানাই। আজকে উনি এখানে এসে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। এখানে মিলিত হয়েছেন আরও পান্নালাল বানশালীজি। পান্নালাল বানশালীজির পরিচয় হলো রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতীর উনি হচ্ছেন কর্ণধার, প্রেসিডেন্ট। তিনি নীরবে কাজ করে যান, তিনি নীরবে কাজ করেন, প্রচার নেই, প্রকাশ নেই, কিন্তু নিরলস পরিশ্রম করে মানুষের পাশে সুখে দুঃখে সবসময় থাকেন। তাকে আমরা পেয়েছি। এই সঙ্গে আমার সঙ্গে যদিও খুব বেশি পরিচিত আমি নই ডক্টর দেব রায়, উনি এসেছেন। উনি নাগাল্যান্ডের সেবা ভারতীর প্রেসিডেন্ট। উনি এখানে এসেছেন আমাদের কাছে, এটাও আমাদের কাছে বিরাট বড় ভাগ্যের কথা। তাই এই যে মানুষগুলো আমাদের পাশে এসেছেন, তাদের প্রত্যেককে আমি ফ্রেন্ডস সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই, ধন্যবাদ জানাই এবং প্রণাম জানাই। আজকে এই যে প্রদীপজির অনুপ্রেরণায় আমরা যে এখানেতে কোভিডের সময় সেবার কাজগুলো করেছি, তার পিছনে একমাত্র মানুষ যিনি দাঁড়িয়েছিলেন আমার পাশে, আমার কাছে, সেটা দুজন, প্রদীপজি আর বানশালীজি। এদের দুজনের কাছে আমরা এই গ্রামের মানুষরা চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।
আমার বলার এই বাংলা বলার পর আমি কিছুটা ইংরেজিতে বলার চেষ্টা করছি, আমাকে যারা ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করবেন। Good morning and welcome to Friends Society. On behalf of Friends Society and the people of this area, I would welcome the gracious presence of Honorable His Excellency Governor Sri Jaydeep Dhankar, Mrs. Dhankar, as well as Pradeep ji, Bansali ji, and Seva Bharati Nagaland, Dr. Debrai ji. All you are most welcome, and I'm grateful. The people of this area are really grateful having been associated with you. Thank you very much for coming here. Your generosity, your support will take us, and we should go a long way, and I think long way is the only way. We are very proud having been associated with this so dedicated person and personality, our governor, Sri Jagdeep Dhankar. He is a man, I can tell, he is an iron man. He never down his head with any injustice. So he is always there where the people are in distress, where the people are in need. So that type of dedication I really appreciate, and for that reason I would appreciate his appreciation to me. He selected me. I'm a very small man, but he selected me as the chairman of Indian Red Cross Society. On behalf of the Indian Red Cross Society, I would like to say, not only keeping the society's work in Calcutta and city area according to him, I would like to carry his message. I would like to go every corner, every village of West Bengal within 2-3 years. It is my promise. For that reason, I'm telling you, Red Cross Society will do its best, and it will not be a signboard society. It will really a society who can stand behind the people who are in distress or who are in need. And I need the support from that type of Iron Man, Dhankar ji. And if we can have it, I can tell you, I can promise you, we can reach to every corner of West Bengal. Thank you very much. Now we are going for this felicitation. What a dazzling moment, obviously. Friends Society মাধ্যমে আজকের দিনে সেই আনন্দক্ষণে আমরা রয়েছি। সম্মাননীয় অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানাবো আমরা হৃদয় থেকে। প্রথমেই আমরা সম্মানিত করব এই মঞ্চে দ্য ফার্স্ট লেডি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অনারেবল শ্রীমতী সুদেশী ধানকার। আর এই মুগ্ধ মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে থাকবেন সম্মাননীয়া শ্রীমতী স্নিগ্ধা কাঁড়ার, তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছি। আর যারা সামনে রয়েছেন হৃদয়ের উষ্ণতা একটু করতালির মুখরতায় আপনারা পৌঁছে দেবেন আশা করছি আমরা। একটা ভীষণ আনন্দের মুহূর্ত। ফ্রেন্ডস সোসাইটি তাদের যে কর্মকাণ্ড, সেই কর্মকাণ্ডের যেন স্বীকৃতি দীর্ঘ 35 বছরের যে পরিক্রমা, সেই পরিক্রমায় আমরা আমাদের হৃদয় থেকে আপন করে নিচ্ছি আজকের দিনের অতিথিবৃন্দকে। আমাদের মাঝখানে রয়েছেন দ্য ফার্স্ট লেডি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অনারেবল শ্রীমতী সুদেশ ধানকার। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শ্রী জগদীপ ধানকার অনারেবল গভর্নর অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং সেই সঙ্গে স্টেট প্রেসিডেন্ট অফ দ্য রেড ক্রস সোসাইটি ওয়েস্ট বেঙ্গল। আমরা তাঁকেও সম্মানিত করছি এই ভীষণ আনন্দিত মুহূর্তে। এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শ্রী পন্নালাল বনসালি অনারেবল প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতী। আমরা আমাদের এই বিশেষ মুহূর্তের আপন করে নিচ্ছি। আমরা আপন করে নিচ্ছি সমস্ত অতিথিবৃন্দকে। একটা বিশেষ মুহূর্ত, যে মুহূর্তে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ফ্রেন্ডস সোসাইটি সোশ্যাল সার্ভিসের শ্রী শান্তিরঞ্জন কাঁড়ার অবশ্যই একটি স্মারক, শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেবেন সম্মাননীয়
রাজ্যপাল শ্রী জগদীপ ধনখড়কে, তারপরেই আমরা সম্মাননীয় রাজ্যপালের বক্তব্যে এগিয়ে চলব সেই বিশেষ মুহূর্তে। একটু করতালির উষ্ণতা আসুক সবার দিক থেকে। একটা বিশেষ মুহূর্ত, যে বিশেষ মুহূর্তে আমরা রয়েছি, শুভেচ্ছা স্মারক আমরা যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ, সঞ্চার করো সকল কর্মে, শান্ত তোমার ছন্দ, চরণ পদ্মে মমচিত নিষ্পন্দিত করো হে, নন্দিত করো, নন্দিত করো, নন্দিত করো হে, অন্তর মম বিকশিত করো, অন্তরতর হে। এই মুহূর্তে সম্মাননীয় শ্রী জগদীপ ধনখড় তার বক্তব্য নিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। স্যারকে স্বাগত জানাই। बहुत कम मौका आता है जब बोलने में दिक्कत होती है। आज वो मौका है। जब से अंदर आया हूं मैं मेरे दिल के कब्जे में हूं। कल्पना नहीं की थी, अंदाजा तो था क्योंकि करार साहब को देखा है मैंने, पर इतना देखूंगा, भारत की संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ नमूना देखूंगा, ये कल्पना करता था, आज जमीन पर देखा है। सम्मानीय आदरणीय प्रदीप जी जोशी भाई साहब, बंसाली जी राष्ट्रीय सेवा भारती के अध्यक्ष, इनका हाथ मेरे ऊपर लंबे समय से रहा है। दशकों से जानता हूं, उस हालात में रहकर, उस स्तर पर रहकर इतना सेवा भाव करेंगे, वो तभी हो सकता है जब 24/7 मानवता जिसके दिल में है। पन्नालाल जी नाम के अनुरूप हैं। बहुत मदद लेता रहा हूँ, मार्गदर्शन लेता रहा हूँ और आंखों से देखता रहा हूँ। कठिन परिस्थिति में भी संयम को रखते हुए कैसे जनसेवा की जाए, उसके आप उदाहरण हैं। सतीश चंद्र तिवारी जी प्रांत के वरिष्ठतम IAS ऑफिसर हैं, राजभवन में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, और ये बहुत ही परम सौभाग्य है कि 1 मार्च से वो प्रांत के पहले स्टेट फूड कमिश्नर बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे। ये नियुक्ति बहुत उच्च स्तर की है और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि कमीशन की जो भावना है, कानून में जो मूल सिद्धांत है, उसकी ज़मीनी हकीकत को समझेंगे और जन कल्याण के कार्यक्रम होंगे। उनकी उपस्थिति गरिमामयी है और उनके आगे के जीवन के लिए इससे बड़ी शुभकामनाएं नहीं हो सकती कि आज के दिन वो यहाँ उपस्थित हैं। नागालैंड से जो अपने मित्र आए हैं, डॉक्टर शंकर देवरे, कम शब्दों में सब बातों का चित्रण उन्होंने कर दिया है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़ जो ये महसूस करती हैं हमेशा कि वकील के लिए सेवा करना बहुत मुश्किल है, वो करती रहती हैं। तो 30 जुलाई 2019 के बाद पन्नालाल जी मैं वकील नहीं रहा, तो मैं भी आप और सुदेश जी की तरह सेवा करने में अग्रणी रहने का प्रयास करूँगा। जब मुझे
यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ तो मेरे मन में दो विचार आए। पहला विचार कि जब शांतिलाल जी का नाम मेरे सामने आया रेड क्रॉस के लिए, तो मैंने दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि गंगा जल की पवित्रता को देखा नहीं जाता है और आपकी नियुक्ति हो गई। उसके बाद जितनी हमारी मुलाकातें हुई, मैं गलत साबित हुआ। मैंने जितना आकलन इनका किया, ये उससे ऊपर जाते रहे। और शब्दों में नहीं, कार्यकलापों में, सोच में। तो प्रथम सेवक होने के नाते मेरे मन में एक भावना जागृत हुई कि रेड क्रॉस जो दुनिया में बहुत बड़ा नाम रखती है, क्या ये पश्चिम बंगाल के कोने कोने में जा सकती है? मैं आज दावा कर सकता हूं इस भूमि पर ये जाएगी। जब मैंने यहां रेड क्रॉस की टी शर्ट देखी, रेड क्रॉस का मास्क देखा, और ये हालात तो तब हैं जब प्रांत की रेड क्रॉस के पास धन नहीं है, संकट है। पर अपनी संस्कृति की एक बहुत बड़ी मिसाल है, अपनी संस्कृति का एक बहुत बड़ा आधार है। धन की कमी से कोई काम रुकता नहीं है, ये आप देख सकते हैं। विचार ठीक है, काम अच्छा है, बूंद बूंद कर कर आवश्यकता पूरी की जाती है। यहां से मैं करार साहब को शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने मिशन में, अपनी पैशन के अनुसार देश और दुनिया में जितना नाम उन्होंने कमाया है, उसके अनुरूप रेड क्रॉस को पश्चिम बंगाल में गांव-गांव में पहुंचा दें। ये बहुत अच्छा रहेगा। 35 साल का सफर इस नाम के साथ शुरू में तो बिल्कुल आसान नहीं रहा होगा, बहुत मुश्किल रहा होगा। सबसे कठिन काम है हैंड होल्डिंग का, बहुत कठिन काम है। कई बार हम चित्रण देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति की कोई मदद कर रहा है, या जो देख नहीं पाता है उसको कोई मार्गदर्शन दिखा रहा है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। पर हम ये सोचना भूल जाते हैं कि क्या ऐसा हम करते हैं? क्या हमारे मन में प्रशंसा उनकी करना लिखा है, या कोई हमारी भी प्रशंसा ऐसे करते के लिए करे? मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, चिंतन कीजिए, सोचिए, कोविड महामारी ने हमें क्या नहीं सिखाया। कोविड महामारी ने दुनिया को अपनी चपेट में लिया। अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं किया, किसी आइडियोलॉजी को कोविड ने नहीं समझा। पर हिंदुस्तान की ताकत है, भारत माँ की संस्कृति है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, जिसमें तबाही मच जानी चाहिए थी, हाहाकार हो जाना चाहिए था। दुनिया के वो देश जो नाज करते थे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं हो सकता, उनकी क्या दशा हुई है। अपने देश में ऐसा नहीं हुआ। अपने देश में किसी को भूख नहीं मरने दिया। कोविड की चोट डेली वर्कर पर बहुत भयानक पड़ी थी। जो रोज कमाता था उस पर क्या बीती थी, ये मजबूती आई। देश को ऐसा नेतृत्व मिला जिसने पहली बार इस महासंकट की घड़ी में जनता के साथ मिलकर, जनता के समर्थन से, जनता के सहयोग से
निर्णय लिया। मुझे ध्यान है वो दिन जब जनता कर्फ्यू लगा, ध्यान है मुझे। वो दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उस समय भी कुछ लोग चुप रहे, उस समय भी लोगों का दिल नहीं पसीजा। इतने बड़े महासंकट में भी क्या हम और कोई रोटी सेक सकते हैं? मुझे इस बात में शंका नहीं, दुख है, ऐसा नहीं कर सकते। जब राजभवन में मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा देश के 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पालना की, किसके लिए? जनता एकजुट हो जाए ताकि कोविड का मुकाबला करें। ये बहुत बड़ी मानसिक चुनौती थी। अन्य बातों के अलावा लोग चुप रहे। इसका एक कारण है जो मैं यहां आकर आपको कहूंगा। नेताजी सुभाष ने आज़ादी के लिए क्या कुछ नहीं किया। अब उस आज़ादी में यदि अगर मन में डर है तो वो आज़ादी कहाँ है? मैं पश्चिम बंगाल के ग्रामीण अंचल में हूँ। लाखों लोगों ने शहादत दी है। ये आज़ादी किसी की बपोती नहीं है। पश्चिम बंगाल का कोई हिस्सा किसी का जागीरदारी में नहीं है। यहां एक ही राज चलता है, वो भारत के संविधान का। यहां एक ही संस्कृति हो सकती है, रूल ऑफ लॉ। यहां जब लोगों में भय देखता हूं, महसूस करता हूं कि अपने आप को ताकतवर मानने वाला छोटी सी बात की बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, तब मुझे याद आता है कि नेताजी में क्या हिम्मत रही होगी। मुझे याद आता है खुदीराम बोस ने क्यों अपने प्राण निछावर किए। आप सबको आज सोचना पड़ेगा। हाथ जोड़कर विनती करता हूं, चिंतन करना पड़ेगा। यह मेरा आग्रह है। पश्चिम बंगाल का स्थान देश में सबसे ऊपर है। ईश्वर ने हमारे पर बहुत बड़ी कृपा की है। यहाँ के लोगों की प्रतिभा को जब मैं देखता हूँ तो इनका मुकाबला देश और दुनिया में कोई नहीं कर सकता। यहाँ के लोग म्यूजिक में, आर्ट में, कल्चर में दुनिया के लोगों से बहुत आगे हैं। मैं कायल हूं इस बात का। साधारण व्यक्ति भी अपने आचरण से मुझे कुछ न कुछ रोज देता है, मेरे कल्चरल डीएनए को चेंज करता है, इसमें इनपुट बढ़ता है। ऐसे प्रांत में हम कहाँ थे और कहाँ आ गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बहुत से लोग कहते हैं राज्यपाल जी, कुछ लोग आपकी बातों पर टिप्पणी करते हैं, क्या ये कहना गलत है कि हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हिंसा नहीं होनी चाहिए? है कोई जो कहेगा हिंसा होनी चाहिए? क्या कोई ये कह सकता है कि चुनाव रक्त रंजित होने चाहिए? क्या कोई उस चीज की स्वीकृति दे सकता है कि ग्रामीण अंचल में 2018 में क्या तांडव नृत्य हुआ था? मैं आपको वचन देने आया हूं, यह मेरी शपथ का हिस्सा है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। जो लोग ये समझते हैं कि कानून की हद पार कर कर कानून के शिकंजे से बच जाएंगे, मैं उनको आग्रह करता हूं और चेतावनी भी देता हूं, वो दिन लद गए हैं। मुझे खुशी है और मुझे प्रशंसा है
कि मेरी बात का असर व्यापक स्तर पर हुआ है। मैं सरकार के जो नीचे स्तर के जो अधिकारी हैं, हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, मैं उनको साधुवाद का पात्र मानता हूं। उनके मेरी बात समझ में आ गई है। ऊपर के कुछ लोग हैं जो सत्ता में स्टेक होल्डर हैं, जो इस बात में इन्वॉल्व हैं कि हमें एक राजनीतिक नतीजा चाहिए। क्या मतलब है सरकारी तंत्र का राजनीतिक आउटकम से? राज्यपाल का काम राजनीति करना नहीं है और मुझे राजनीति नहीं करनी चाहिए। उसी तरीके से किसी भी अधिकारी का काम राजनीति करना नहीं है। वो राजनीति करेगा, अपने पद के साथ बहुत बड़ा मिसकंडक्ट करेगा और एक अपराध करेगा। मैं दूसरे विषय पर आने से पहले अंत में एक बात कहूंगा। 2021 बहुत बड़ा महायज्ञ है। यह दशक बहुत महत्वपूर्ण है। यह दशक ये दिशा तय करेगा देश कहां जाएगा, पश्चिम बंगाल कहां जाएगा और विश्व में हमारा क्या स्थान रहेगा। इसमें हर किसी को आहुति देनी है, पर सबसे बड़ी आहुति, सबसे निर्णायक आहुति आप लोगों की है। आप लोग क्या करें मैं नहीं कहूंगा, पर आप अपने मन की करें, बिना डर के करें, बिना भय के करें और यह सोचकर करें कि आप मन की करोगे तो आपके साथ किसी की मनमानी नहीं होने दूंगा। यह आपका प्रथम सेवक आपको आश्वस्त कर रहा है। संस्था के कार्यकलापों को देखकर, लोगों का कमिटमेंट देखकर, गतिविधियों को देखकर मैं अभिभूत हूं और मैं मानकर चलता हूं कि आज के कार्यक्रम के पश्चात जो गतिविधियां हैं वो और तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। मेरा राज्यपाल की हैसियत से, प्रथम सेवक की हैसियत से जो भी योगदान हो सकता है मैं करने को तैयार हूं। इसमें कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। मैं आह्वान करूंगा उस हर व्यक्ति से जो कड़ी से कड़ी मिलाकर ऐसे अच्छे कार्यक्रम करने में अपना सहयोग दे। राज्यपाल की हैसियत से मैं इस संस्था को 11 लाख का अनुदान देता हूं। रकम छोटी है, पर मैं ये कहूंगा जो भी कोई रकम छोटी दे या बड़ी दे, रकम से ज़्यादा भावना है और यही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी मजबूती है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने दिल खोलकर जो बात कही है उसकी मैं आंखों में देख रहा हूँ असर हुआ है। संकल्प लेकर जाइए यहाँ से, किसी भी हालत में डर से दूर रहेंगे। किसी भी हालत में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी अधिकार नहीं है वो किसी को डराए, और कोई यदि डराने का प्रयास करता है, राजभवन में आपका भाई बैठा है और मैं कह सकता हूं, सबसे पहले हाथ जोड़ूंगा, विनती करूंगा, पर भारत के संविधान ने जो ताकत मुझे दी है उसके दो पहलू हैं। पहला, 30 जुलाई 2019 को शपथ क्या ली थी, आई विल प्रिजर्व
प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसका हिस्सा है। और मेरी शपथ का दूसरा पार्ट है, आई विल सर्व द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी। आपका भाई आपको निराश नहीं होने देगा। अंत में मैं पश्चिम बंगाल की जनता को नाउम्मीद नहीं कर सकता कि यहाँ चुनाव बिना रक्त रंजित के नहीं हो सकते, नहीं कर सकता। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को नाउम्मीद नहीं कर सकता कि यहाँ मतदाता अपने हिसाब से वोट नहीं दे सकता, नहीं कर सकता। मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई पुलिस अधिकारी इस अहंकार में आ जाए कि मैं नतीजे को निर्णय करूंगा। मेरे ध्यान में बातें आई हैं, कुछ लोगों की नियुक्ति की गई है, उनको पॉलिटिकल सुपारी के तहत नियुक्त किया गया है। व्यक्तिगत रूप से मैंने उनको आगाह किया है, दे शुड नॉट प्ले विद फायर। अंत में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। ইউফোনি মিউজিক, স্বনামধন্য মিউজিক কম্পোজার, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সুপ্রিয় শীতাংশু মজুমদার, তিনি থাকছেন এই পর্বের পরিচালনায়। ভারতবর্ষ বিবিধের মহান মিলন ক্ষেত্র। ভারতবর্ষ সাংখ্য ন্যায় বেদান্তের পীঠস্থান, সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক আমার দেশ ভারতবর্ষ। বহু সাধনার বহু প্রেরণার এ দেশ আত্ম উদ্দীপন আত্ম উদ্বোধনের মন্ত্রঋদ্ধ। কিন্তু এই সুদূর বিস্তৃত বৈচিত্র্যের যথার্থ উত্তরাধিকার কি সত্যিই বহন করছে আজকের ভারতবাসী? তবে কেন সার্বিক সাক্ষরতার রাষ্ট্রীয় অনুকম্পাটুকু নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট? আর্যভট্টের ভারতবর্ষে বিজ্ঞান চেতনার দীপবর্তিকা কেন নিভিয়ে দিতে চাইছে বিকৃত অজ্ঞানতা? গৌতম বুদ্ধের ভারতবর্ষকে কেন গ্রাস করছে হিংসার পাশব উন্মত্ততা? ফিরে এসো ভারতভূমি শাশ্বত মহিমায়, ফিরে এসো ভারতবর্ষ চিরায়ত চেতনায়। জেগে ওঠো ভারতবাসী তেজদীপ বলিষ্ঠতায়, হৃদ্য হোক আজকের ভারত জন্মভূমি জননী আমার।
ভাসে হিমাচল কন্যাকুমারিকা, অলঙ্ঘ প্রাচীর ঐক্য প্রতিজ্ঞা পরীক্ষা, চোখে কানে ঘ্রাণে প্রাণে দেহ মনে কথায় স্নায়ুতে, গঙ্গা পদ্মার হাসি একাকার সমগ্র সত্তার অজেয় আয়ুতে, নিত্য মৃত্যু উত্তীর্ণ দুঃখে হর্ষে ছন্দে বর্ণে বেঁধে দাও কোমল কঠিন স্পর্শে। এদেশ আমার গর্ব, এ মাটি আমার কাছে সোনা, এখানে মুক্তির লক্ষ্যে মুকুলিত হয় আমার সহস্র স্বাদ সহস্র বাসনা। When the terror and tumult of hate shall cease, and life be refashioned on anvils of peace, and your love shall offer memorial thanks to the comrades who fought in your dauntless ranks, and you honor the deeds of the deathless ones. Remember the blood of my martyred sons. हर करम अपना
आते हैं, हमें तड़पाते हैं। वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुमने ये घर सुना सुना है। চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর, আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস সর্বরি, বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is laid forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. दामन पे जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगीन तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো। একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো, একলা রাতের
হেথা একদিন বিরামবিহীন মহাঙ্কার ধ্বনি, হৃদয়ে তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণী। তপস্যা বলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া, বিভেদ ভুলিল জাগায় তুলিল একটি বিরাট হিয়া। সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা জিদার, হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले, बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के। ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। जय हो, जय हो। आजा आजा संदेशा में आने के तले, आजा सॉरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा संदेशा में आने के तले, आजा सॉरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो, 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 जय हो। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। देश हम
मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ब्रह्मवा सारा जहां देख लिया है तो भी तेरे जैसा कोई नहीं है नहीं सौ दिन दुनिया घुमा है नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है और तेरा प्यार ही है सलाम मम्मा तुझे सलाम मम्मा तुझे सलाम मम्मा तुझे सलाम वंदे मातरम
অবশ্যই একটা বিশেষ নান্দনিক মুহূর্তের পর্বে আমরা ছিলাম। थैंक यू। थोड़ा लंबा कर लीजिए ताकि हाँ अमेजिंग, अद्भुत। ये मौका कभी नहीं भूलेंगे। नमस्कार।